Hello everyone, and today we are going to discuss some schemes which is government based scheme, and in that first is agriculture. So agriculture infrastructure fund. Okay, what it is? This is for the Bharat. Bharat is a scheme. Bharat Bharat is a scheme bank heralding accelerated rural agriculture transformation. It is rural agriculture transformation. Purpose is to address the infrastructure gaps plus investment. It is a central sector scheme. And National Bank for Agriculture, NABARD is providing fund, and tenure is up to 2033. Okay, so this is the Agri Infra Fund which is under Bharat scheme, and this Bharat is bank heralding accelerating rural agri transformation. So in this scheme, this is a central sector scheme. In this scheme, objective of the Bharat scheme is long-term debt financing, medium and long-term debt for the to reducing the infrastructure gap. Okay, so for harvesting the management infra and community farming asset, to making the community farming asset. So this is Agri Infra Fund, and there is Atmanirbhar Bharat. And this Atmanirbhar meaning is self-reliant India campaign. Self-reliant campaign, and that is for farmer, for primary agri societies, for self-help group, and for state agencies. Okay, so this is the salient features. तो इसमें कितना लोन दिया जाएगा? अभी इसको 1 lakh crore is given from the government of India. Interest subvention is 3% on the loan. So 3% is the interest subvention is provided to the farmers. Okay, and in this credit guarantee is loan up to 2 crore rupees. Up to 2 crore rupees का लोन फार्मर्स को दिया जा सकता है अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ माइक्रो एमएसएमई के जितने भी फार्मर्स हैं जो एमएसएमई के साथ कोलैबोरेटेड है उनको. नेक्स्ट इज क्या क्या चेंजेस आएंगे? एक तो सप्लाई चेन, दूसरा होगा सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ पीपीपी के साथ. एक तो सप्लाई चेन में रेजिलिएंट आएगा, फिर पीपीपी को अप्लाई किया जाएगा. एंड इंफ्रा स्मार्ट प्रेसिजन एग्रीकल्चर को क्या किया जाएगा? स्मार्ट बनाया जाएगा. MIS हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस मॉनिटरिंग. बैंक हेराल्डिंग भारत इज बैंक हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ फॉर द कॉम्पिटिशन स्पिरिट में, मतलब बैंक्स में क्या लाना है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाना है. सो दिस इज़ फॉर द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द बैंक्स. एंड बेनिफिट्स किससे होगा? फार्मर को बेनिफिट्स होगा बिकॉज उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं,
So farmer will get the benefit because the post harvest losses will reduce. It will reduce. गवर्नमेंट को भी होगा क्योंकि इसमें स्टार्टअप, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द स्टार्टअप and consumer will get the cheap product, and consumer will get the cheap products. Okay, so this is all about this scheme. नेक्स्ट है पीएम किसान स्कीम. नेक्स्ट स्कीम इज पीएम किसान स्कीम. So this scheme is central sector scheme. Central sector. It is also central sector scheme to supplement the financial needs of all landholding farmer for procuring inputs. Like landholding farmers जितने भी हैं, landholding farmers बेनिफिट दिया जाएगा 6,000 रुपये पर ईयर for the 3 equal installment of 2,000 rupees. ठीक है, for every 4 month में इनको दिया जाएगा. ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना टू ऑल द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. लैंड रिकॉर्ड को मैंडेटरी बताना पड़ेगा. लैंड रिकॉर्ड्स, व्हाट आर योर लैंड रिकॉर्ड्स, एंड आइडेंटिफिकेशन होगा बेनिफिशियरी का. सेल्फ रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. ठीक है, तो इसमें कैसे करना है सारा कुछ. तो फार्मर की जो फैमिली है, जैसे इनकी लैंड होल्डिंग कितनी है प्रेजेंट में, हाउ मच लैंड होल्डिंग इज़ देयर. इसके अलावा फार्मर की जो लेजिस्लेशंस हैं, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ कितनी टाइज़ हैं और लेजिस्लेशन है, ये इसमें डिफ़ाइन किया जाएगा. लैंड होल्डर्स कौन कौन हैं, और मंथली पर सीज़न इज़ 10,000 और मोर. इसमें वो लोग बेनिफिशियरी होंगे जो 10,000 या मोर मंथली कमाते हैं. और ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स गवर्नमेंट PSC भी इंक्लूडेड होंगे. मतलब ये वो फैमिलीज़ है जो एक्सक्लूडेड है, सॉरी इसको कट कर देना. ये वो हैं जो एक्सक्लूडेड है, जिनकी 10,000 या इससे ऊपर इनकम है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है. जिनके बच्चे या फादर अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस स्कीम में इंक्लूड नहीं किया गया है. और जो लोग प्रेजेंट में लेजिस्लेचर एट 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट के साथ, जैसे फार्मर एंड प्रेजेंट लेजिस्लेशन मिनिस्ट्रीज़ के साथ में जो कोलैबोरेटेड है, ऐसा कुछ है. और टैक्स, ऑल पर्सन वो पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो पीएम किसान जो है वो कोर स्कीम है, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बट दिस इज़ फॉर द मार्जिनलाइज फार्मर, नॉट फॉर द बिग फार्मर. इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया जाएगा. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. पीएम फसल बीमा. ओके, पीएम फसल बीमा योजना जो है, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. क्या है ये? स्पॉन्सर्ड स्कीम है फसल बीमा. इसमें डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जिसमें वॉलेंटरी फॉर द स्टेट एज वेल एज इट इज़ वॉलेंटरी फॉर द स्टेट एंड फार्मर्स और स्टेट्स के लिए ये वॉलेंटरी है. ऑल फार्मर आएंगे, जिसमें शेयर क्रॉपर और टीनेट्स फार्मर. एक तो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं टीनेट्स फार्मर्स आते हैं. दोनों इसमें इंक्लूडेड होंगे. डीजी क्लेम भी किया जा सकता है सेटलमेंट के लिए. सो डीजी क्लेम्स आर ऑल्सो देयर फॉर द फार्मर इन अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. दिस इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, and in this scheme financial support providing to the farmer. So financial support to the farmers को financial support provide किया जाएगा. इनोवेटिव प्रैक्टिस ली जाएगी. ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में जो लोग हैं, ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम और
uses the weather parameters for the crop yield and crop covered for the rabi and kharif. तो इसमें राबी की क्रॉप भी कवर्ड आएंगी और खरीफ की क्रॉप भी इसमें कवर्ड है. सो 2 types of crops are covered in this. First one is the rabi crop and second one is the kharif crop, and financial support will be provided to the farmers for stabilizing their income, and adoption of innovative and agriculture practices are also there. Now the premium paid that was assured actuarial premium rates are there. Actuarial premium rates. So premium भी paid 5% for commercial crop. तो premium कितना होगा? 5% for commercial crops and 2% for kharif crops and 1%, 1.5% for the rabi crop. Okay, this is the premium rates. And premium by the government shared between the center and the state. तो रेशियो जो होगा प्रीमियम का दैट विल बी 90:10 and it is for the north eastern area, and for 50:50 that is for the state area. So 50:50 that is for the state area and 90:10 that is for the north eastern area. डिस्ट्रिक्ट लेवल में वैल्यू दी जाएगी. ओके, एंड बेसिक कवरेज जो होगा, यील्ड लॉस जो होगा, जितना भी यील्ड लॉस होता है इसको कम किया जाएगा. एंड ड्रॉट वगैरह की रिस्क होती है या फ्लड की यानी रिस्क होती है उसको कम किया जाएगा. एंड कवरेज इज़ जनरल एक्सक्लूजन, वार, न्यूक्लियर रिस्क वगैरह इसको भी कवर किया गया है. इसमें क्या क्या मैंडेटरी है? तो आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी. आधार कार्ड इज़ ए मैंडेटरी. एंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने कुछ टाइप कर रखा हो, स्टेट्स कैन सेटअप द इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप. देन एलोकेशन ऑफ द बिजनेस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी का 3 ईयर तक चल रहा हो. एरिया अप्रोचेज़ हैं, इसमें इंश्योरेंस यूनिट भी होती है. ठीक है, तो इसमें एक इंश्योरेंस यूनिट होगी जिसने लास्ट 3 साल तक इसके साथ कोलैबोरेट कर रखा हो. एक आधार कार्ड आपको ज़रूरी है. अदर देन दिस देयर इज़ ए 3 अल्टरनेटिव रिस्क मोड भी इसमें होते हैं. रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसकी. कैसी होती है? रियल टाइम ऑब्जर्वेशन. एंड देयर इज़ ए डीजी क्लेम. डीजी क्लेम्स आर ऑल्सो देयर. इन डीजी क्लेम्स दे आर नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है. नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल प्लस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. सो नेशनल क्रॉप प्लस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. एक इसके साथ विंड को भी कोलैबोरेटेड किया गया है. वेदर बेस्ड इंफॉर्मेशन डाटा एंड यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम. यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो देयर. डोर टू डोर एनरोलमेंट किया जाएगा. सो डोर टू डोर एनरोलमेंट विल बी डोर टू डोर. एनरोलमेंट विल बी डोर टू डोर. Forecasting the agrometeorological data, and there is agrometeorological data will be there. And e-governance is also included. इसरो के साथ कोलैबोरेट किया गया है. और भुवन, इसरो एंड भुवन will also provide the pest surveillance. So इसरो, इसमें एक जियो प्लेटफॉर्म है, नेम इज़ भुवन. So भुवन will provide the pest surveillance by the Bhuvan. Okay, so this is all about the farmer की जितनी भी स्कीम्स थी वो हमने डिस्कस की. So this is about the Indian